A big hello to all of you. Hope you're doing perfectly fine. This video is going to discuss the solution to the task that was assigned in the previous video. So, a card is being provided for that, for the task, the homework that was given to you in the previous video, because a detailed explanation has been given in that. In this particular video, we will run through all our steps, okay, so that you can compare your solution with what is going to be solved in some amount of time. Also, if your solution, which I fully believe completely matches with what I am going to be solving in some time, do provide a thumbs up to this particular video. Okay, as usual, cards are being provided right now to the previous video and links will be provided at the end of it. So let's get started. We will be starting a solution for the day. For that, let me very quickly go through what was given in the question. Mike and Minu are partners. From the following trial balance, you are supposed to prepare trading, profit and loss account and a balance sheet. Trial balance, markings, already done, but I'll go through it just to remind you what was decided, what was discussed with you. Land and building is an asset, copyright is an asset, बट कौन सी टाइप का एसेट है? इंटेंजिबल. ओके, याद दिला देता हूं मैं. क्या फर्क है इंटेंजिबल में? बिल्डिंग एक टेंजिबल एसेट होती है. उसका मतलब क्या है? टेंजिबल का मतलब है आप इसको टच कर सकते हो. ओके, बट कॉपीराइट का मतलब क्या है? आप इसको टच नहीं कर सकते हो, ये दिखता नहीं है. ओके, इफ समवन लव्स समवन एल्स, ओके, वो फीलिंग होती है, बट कैन यू एक्चुअली सी लव? No, it is just a feeling between two people. So it is like that this cannot be seen. Copyright. Okay. Furniture asset होता है. Drawings partners से connected है. Partners capital. Office का भाड़ा है तो P&L. Manager का पगार है तो भी P&L. First hidden adjustment. किसने बताया? For 4 years. For 4 years मतलब आपको दया को याद करना है, कुछ तो गड़बड़ है. लेटर ऑन मिस्टर सालुंकी के हेल्प से आपको थोड़ी सीआईडी इंक्वायरी करके ढूंढना भी पड़ेगा कि क्या गड़बड़ है इसके अंदर. ओके, सो स्टार मार्किंग आपको करना है. P&L अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाएगा. एडवर्टाइजमेंट पोस्ट प्रोडक्शन P&L. मशीनरी इज एन एसेट, मोटर कार इज एन एसेट, डेटर इज एन एसेट. परचेसेस ट्रेडिंग, बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस इन द फॉर्मूला ऑफ bad debt. Return inward is sales return, therefore trading. Investment अगर करोगे बहुत अच्छा है, भविष्य में काम आएगा. आप इन्वेस्ट करोगे आपको काम आएगा, आपके बच्चों को काम आएगा. So it is good tomorrow, फ्यूचर में फायदेमंद है, इसके लिए एसेट. पर बगल में क्या है? 10%. 10% एक इशारा है, क्या इसमें कुछ हिडन है? So there is a hidden adjustment, therefore you will put a star marking. So insurance 1 star, investment 1 star, hidden adjustment. Moving on, return outward purchase return है. Trading, loan on mortgage क्या है? गिरवी रखा है और आपने लोन लिया है तो लौटाना तो पड़ेगा ना, liability. RDD कौन सा? old RDD, P&L account. अगर for some reason if you have forgotten the entire concept of bad debt and the formula, there is a video for it. Please make sure you watch that video so you understand the entire concept and how do you handle bad debts in any sum. How do you handle RDD in any sum. Creditor, I have to pay tomorrow, therefore it is a liability. Rent received, अब भाड़ा मिला है तो अच्छी बात है ना, अपनी जेब में तो पैसा आ गया. इनकम तो ये P&L में आता है, क्रेडिट साइड पे. डिविडेंड रिसीव्ड, कुछ भी मिलता है तो अपने लिए तो अच्छी बात है, इट इज एन इनकम. डिविडेंड कौन देता है हमको? कंपनी. ओके, कोई भी पब्लिक कंपनी हमको जब डिविडेंड देती है तो उसको पैसा देती है, उसको डिविडेंड कहते हैं. बिल पेएबल लायबिलिटी है. सेल्स ट्रेडिंग, कैपिटल पार्टनर का पैसा है, पार्टनर्स कैपिटल. इन एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट 1 ये क्लोजिंग स्टॉक का है, सो देयर इज नो स्टार मार्किंग. सेकेंड एडजस्टमेंट इज गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, देयर इज नो स्टार मार्किंग. हाउ डू यू सॉल्व दिस? This is written in the trading account and later on it is also written in the profit and loss account. Such adjustments have been done previously.
होपफुली यू रिमेंबर देम। थर्ड, मिस्टर प्लूटो, ये कौन है? ये हमारा कस्टमर है। क्या हो गया? अब इसके लिए भी बैड न्यूज है, कंगाल हो गया बेचारा। तो क्या हो गया? देखो, उसका बैड न्यूज हमारे साथ कनेक्टेड है, क्योंकि आजकल क्या है, कनेक्शंस का जमाना है। जब दूसरे किसी को कुछ होता है तो उसका असर हम पे भी हो जाता है। सो अगर अपना कस्टमर कंगाल होता है तो उसके लिए हम इतना दुखी नहीं होंगे जितना दुखी हम हमारे पैसे के लिए होंगे, क्योंकि हमको हमारा पैसा मिलने वाला नहीं है। हमको जो पैसा मिलना था ना, डेप्ट जो प्लूटो को हमको देना था, ओके, उसको हमको अलविदा करना पड़ेगा। देयरफॉर अ कस्टमर मीन्स अ डेटर। इंसॉल्वेंट मतलब हमको पैसा मिलने वाला नहीं है। तो ये 3000 आपको डेटर से सब्ट्रैक्ट करना है। वर्डिंग्स क्या रहेंगे? एडिशनल बैड डेट, देयरफॉर 1 स्टार फॉर दैट। ऑल्सो रिमेंबर, इसका 2 इफेक्ट्स आपको देना है। फोर्थ, क्रिएट। क्रिएट का मतलब कुछ नया ना, न्यू, RDD, ओके, एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे आपको डाउट है कि 5% लोग रफू चक्कर हो जाएंगे पैसा लेकर, तो ये भी डेटर से ही सब्ट्रैक्ट करना है। सो 1 मोर स्टार, 2 स्टार्स मीन्स 3 लाइन्स। फिफ्थ, डेप्रिशिएट मोटर कार, 1 स्टार फॉर मोटर कार एंड मशीनरी, 1 स्टार फॉर मशीनरी। सिक्स्थ, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, यू डू नॉट हैव टू पुट एनी स्टार मार्किंग। ऐसा मत कहना सर देखो कैपिटल लिखा है, कैपिटल को स्टार करते नहीं, इसके लिए कोई स्टार मार्किंग करना नहीं है। ये ऐसा एडजस्टमेंट है जो अलग से डेबिट और अलग से क्रेडिट आ जाएगा। यू डोंट हैव टू पुट अ स्टार मार्किंग फॉर इट, इट इज एक्सप्लेन्ड लेटर ऑन। पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस में से रेशियो आता है? कैपिटल्स। तो ये कैपिटल है 60,000 60,000। इफ यू वेरी क्विकली हैव अ लुक एट दिस, माइक एंड मीनू 60-60, कॉमन जीरोस कितने थे? 4। तो 6:6 कैंसिल किया, क्या आया? 1:1। सो 1 and 1 का टोटल क्या है? 2। That means half and half. Later on in the solution, we will use half and half. That means all our adjustments and everything in the trial balance has been discussed. So as far as the steps are concerned, our first step has been accomplished. We will now start step 2, which is empty the trial balance. इसके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला है लैंड एंड बिल्डिंग। मैंने पहले बताया है, आदत है मेरी, रिपीट कर देता हूं, आपका टाइम ज्यादा स्टेप 1 में होना चाहिए जब आप ये सारी चीजें मार्क कर रहे हो, बिकॉज व्हेन यू मार्क परफेक्टली, ऑटोमेटिकली स्टेप 2 में टाइम कम हो जाता है। ओके, सो राइट नाउ वी विल breeze through all of these postings in the various accounts and the balance sheet. First is land and building. It goes to the balance sheet. On the asset side, 50,000. Next is copyrights, 1,60,000. It is an intangible asset, therefore also goes to the asset side, 1,60,000. Next is furniture and fixture, 40,000, also an asset, therefore in the balance sheet on the asset side, 40,000. Next is drawings connected to partners. पार्टनर के अकाउंट में डेबिट साइड पे आप लिखोगे 2 ड्रॉइंग्स, 2,000। उसके बाद ऑफिस का भाड़ा है, ऑफिस का रेंट आपको ऑफिस में लिखना पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पहले लाइन में 5,000 रुपया। उसके बाद मैनेजर सैलरी, ये भी ऑफिस में ही बैठता है। वर्क्स मैनेजर सैलरी वो फैक्ट्री का होता है, प्रोडक्शन, ये वाला ऑफिस का है, देयरफॉर ये भी P&L अकाउंट में जाएगा। डेबिट साइड पे आप लिखोगे 14,000। उसके बाद इंश्योरेंस, ये हमारा आज का इंपॉर्टेंट आइटम है, इसके अंदर इसमें हिडन एडजस्टमेंट है, तो इसके लिए स्टार मार्क करके रखा है। व्हाट डज दैट मीन? यू विल हैव टू लीव 1 लाइन व्हेन यू राइट इट इन प्रॉफिट एंड loss account. So in profit and loss account on the debit side, we write insurance 4,000. Just make sure 1 line is left blank for this. Okay. Next one is opening stock, that is trading account, 25,000. So we go to trading account on the debit side, 25,000. Next is advertisement, profit and loss account on the debit side, 1,500. नेक्स्ट इज मशीनरी, एसेट है तो एसेट साइड पे जाएगा बैलेंस शीट में, 12,000, लीव अ लाइन क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है। उसके बाद मोटर कार 24,000, इसमें भी एक एडजस्टमेंट है, लीव अ लाइन। और उसके बाद
देयर इज डेटर्स, देयर आर 2 स्टार्स, तो 3 लाइन इसमें खाली रखना. ओके, सो हियर वी राइट डेटर्स. सो 1 2 3 ये 3 लाइन हमने खाली रख दिए. परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा इनर कॉलम में. नेक्स्ट इज बैड डेट, वो बैड डेट के फॉर्मूला में चला जाएगा इनर कॉलम में. उसके बाद रिटर्न इनवर्ड, ये सेल्स रिटर्न है तो ट्रेडिंग अकाउंट के इनर कॉलम में जाएगा 2000. इसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट्स दिखते हैं. इन्वेस्टमेंट्स हमने लिख दिया है यहाँ पर 10,000, बट देयर इज एन एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट. क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज है इसके लिए. सो एक लाइन रख देना. एक्सप्लेनेशन थोड़े टाइम में आपको रिपीट करा देता हूं. डेबिट साइड खत्म हो गया है. क्रेडिट साइड पे रिटर्न आउटवर्ड, this is purchase return. Therefore in the trading account you will write it 2000. Next is loan on mortgage. लोन मतलब आपने दूसरे किसी से पैसा लिया है तो ये उनका है, तो लाइबिलिटी साइड पे लिखना है क्योंकि आपको ये रिटर्न करना है 15,000. Next is RDD. If you look at the formula, old RDD comes in T for trial balance. Therefore, what you see in front of you, RDD 2000, that is nothing but old RDD 2000. After that, creditor is a liability. Balance sheet में आप लिख लो 40,000. After that, rent received, it's an income, तो profit and loss में आता है 4,000. So go to profit and loss on the credit side. 4,000. The first line normally is left क्योंकि वहां पे जब आप टैली करते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है. ओके, अगर आप रेंट रिसीट को फर्स्ट लाइन में लिखो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट नीचे लिख लेंगे. आफ्टर दैट यू हैव डिविडेंड रिसीव्ड 5,000. सो दैट इज आल्सो रिटन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड 5,000. आफ्टर विच यू हैव बिल पेएबल, टुमारो यू हैव टू पे, कल ये आपको पैसे देने हैं क्योंकि ये पराया पैसा है, तो लाइबिलिटी में आएगा 38,500. After that you have sales 3 lakh, that will go to trading account on the credit side 3 lakh rupees. Capitals is Mike and Minu, ये पार्टनर्स के अकाउंट में जाने वाला है. तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ऑलरेडी रिटर्न होता है ओपनिंग कैपिटल. ओपनिंग कैपिटल प्लीज नोट, नो नीड टू राइट, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ये माइक और मीनू जो ओनर्स है उनका पैसा है फर्स्ट डे पर. सो हियर 60,000 and 60,000. व्हेन यू हैव डन दिस, बेसिकली व्हाट हैज एंडेड स्टेप नंबर 2, empty the trial balance. Now students, it's time we do step 3, जिसको हम सॉल्व एडजस्टमेंट्स कहते हैं. इस क्वेश्चन में आपको याद दिला देता हूं, देयर वर 7 पॉइंट्स जो एडजस्टमेंट्स में लिखे थे, बट देयर वर 2 स्पेशल पॉइंट्स. एक था इंश्योरेंस, उसको मैंने आपको कहा हिडन एडजस्टमेंट है, एंड द अदर वन वाज 10% इन्वेस्टमेंट. दिस आल्सो हैड अ हिडन एडजस्टमेंट. द रीजन फॉर इंश्योरेंस टू हैव अ हिडन एडजस्टमेंट इज it says for 4 years, 4 years, 3 years, 2 years, तो समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ है. एंड इन्वेस्टमेंट के बगल में था 10%. कोई भी परसेंटेज अगर आता है, एनी परसेंटेज, अंडरस्टैंड दैट देयर हैज टू बी सम एडजस्टमेंट इन इट. ओके, व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज फर्स्ट वी विल बी सॉल्विंग विद इंश्योरेंस एडजस्टमेंट. लेट्स अंडरस्टैंड इट. द हिडन एडजस्टमेंट ऑन इंश्योरेंस इज सॉल्व्ड एज फॉलोज. थोड़ा टेक्स्ट पढ़ लेते हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये होता क्या है. सो इट सेज, कोई भी खर्चा जो होता है, मैं हिंदी में अनुवाद करके आपको दे रहा हूं. नॉर्मली फाइनल अकाउंट्स 12 महीने का है, आपको 12 महीने के लिए कोई भी खर्चा है भरना है. पर कभी कभी होता क्या है, इट इज पेड फॉर मोर देन 12 मंथ्स. कभी कभी कोई खर्चे एक्स्ट्रा आप भर देते हो, 1 साल 2 महीने, 1 साल 5 महीने, 2 साल 3 साल. तो ये एक्स्ट्रा जब आप भरते हो तो उसको कहते हैं एडवांस का पेमेंट. ओके, देन सच एक्स्ट्रा पेमेंट, एडवांस पेमेंट इज कॉल्ड एज प्रीपेड. टाइम के पहले ही, दूसरा साल आने के पहले ही पेमेंट करा दिया, तीसरा साल आने के पहले ही पेमेंट आपने करा दिया. मैं थोड़ा डायग्राम में आपको दिखा देता हूं. मैं, ये फर्स्ट ईयर है, सोचो ये कौन सा साल है, अपना साल. अपना साल मतलब हम लोग हमेशा अपने साल के लिए फाइनल अकाउंट्स करते हैं. उसके बाद सब पराया साल आता है,
अगला साल आता है. सो एग्जाम्पल आगे, ये हो गया सेकेंड ईयर अगला साल, ये हो गया थर्ड ईयर अगले के अगला साल, ये हो गया फोर्थ ईयर अगले के अगला साल. एंगल मत कर देना उसको, अगला ये है. ओके, बेसिकली फर्स्ट ईयर जो होता है दैट इज फाइन. कोई भी खर्चा एक साल के लिए होना चाहिए. जब गाड़ी आगे चली जाती है, 1 2 3 आगे आगे, तो फिर वो एक्स्ट्रा पेमेंट हो जाता है और उसको कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस. नाउ इन दिस डायग्राम अंडरस्टैंड कितने साल का प्रीपेड है. पहला ओके, उसमें कोई तकलीफ नहीं है. उसके बाद ये एक एक्स्ट्रा साल, ये दूसरा एक्स्ट्रा साल, ये तीसरा एक्स्ट्रा साल, तो 3 साल एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है. तो 3 साल का प्रीपेड होगा इसके अंदर, इंश्योरेंस के अंदर. सिंस इंश्योरेंस इज पेड फॉर 4 years मींस एक्स्ट्रा कितना हो गया, 3 साल के लिए. नाउ आप वो कैसे ढूंढोगे, हाउ टू कैलकुलेट, दिस इज हाउ यू डू इट. 4 साल का 4000. ओके, अभी ये किसने बताया, सिंपल है बाबा, क्वेश्चन में दिया गया है, देख लो. 4 साल का 4000. अभी आपको कितना ढूंढना है, आपको 3 एक्स्ट्रा साल का ढूंढना है. तो 3 साल का कितना, तो इस तरह हो गया. तो क्या करेंगे, इनके बीच में क्या रिश्ता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का. तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, थोड़ा गणित कर लो, इसमें 4 का टेबल यूज कर लो, आपको 1000 आएगा. 3 multiplied by 1000 gives you 3000. So the prepaid, the extra insurance, the future insurance is of 3000. First effect to solve the hidden adjustment of insurance is prepaid insurance. It is subtracted from insurance and 3000. The second effect of prepaid is ये कल फ्यूचर में काम आता है, इसके लिए बैलेंस शीट में इसका सेकेंड इफेक्ट आता है, prepaid insurance 3000. If you look at the question, investment has the second hidden adjustment. अभी इसमें hidden adjustment क्यों है, क्योंकि इसमें परसेंटेज था. Now इसका explanation आप सुन लीजिए. Hidden adjustment on investment is solved as follows. First let's understand, समझ लेते हैं कि इस पे hidden adjustment किस बात का है. Okay, investment is made with an intention that such investment will grow in future. अब मैंने तो फर्राटे से इंग्लिश बोल दिया है, पर इसका मतलब क्या है, आप आपका पैसा बैंक में डालोगे तो यू डोंट एक्सपेक्ट कि मैंने 100 रुपीज डाला तो 100 रुपीज ही होगा. कंपनी में डालोगे, म्यूचुअल फंड में डालोगे, पोस्ट ऑफिस में डालोगे, इन्वेस्टमेंट करने के बहुत ज्यादा एवेन्यूज होते हैं, जगह होते हैं. आप इन्वेस्टमेंट कहां पर भी करो, ओके, यू एक्सपेक्ट कि वो इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए, इंक्रीज हो, घटना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर नुकसान हो जाएगा ना, बढ़ना चाहिए. तो जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जब हम 20 रुपए डालते हैं तो 2 रुपया तो एक्स्ट्रा मिले, 200 रुपया डालो तो 20 रुपया तो एक्स्ट्रा मिले, तो वो एक्स्ट्रा को क्या कहते हैं, सच इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. मीनिंग जब कहते हैं हिडन एडजस्टमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो कुछ बच्चे पूछते सर हिडन मतलब किस बात का इन्वेस्टमेंट है. वेल ये आपको सोचना है, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट. इट इज टू अर्न समथिंग एक्स्ट्रा एंड दैट एक्स्ट्रा इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट interest on investment? You require 3 ingredients for it. ART, ART formula. What does ART formula mean? Let's see ahead. Amount, rate, टाइम. तो ये 3 मसाले जब तक आपके पास नहीं रहेंगे तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का जो पकवान है ना, डिश, वो कुक नहीं होने वाला. तो आपको ढूंढना पड़ेगा, ओके, कि ये 3 पकवान कहां पर है, डिश, ये सॉरी मसाले कहां पर है. सो अमाउंट, ओके, पहले तो टाइम देख लेते हैं. टाइम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च. 1 अक्टूबर क्या है, ये इन्वेस्टमेंट का जन्मदिन, बर्थ डेट, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है. वहां से 31 मार्च तक अगर आप गिनो आपको 6 मंथ्स मिलेगी. सो द टाइम, TIME, इज 6 मंथ्स. अमाउंट एवरीथिंग इज गिवन, 10,000. रेट 10%, which is 10 upon 100. Time is 6 upon 12. 6 months, 12 is fixed. Denominator is fixed. It never changes. Only the numerator, this 6, it may be 2, 6, 8, वो आपको काउंट करना पड़ेगा. Just like this time is counted here, you have to count and write the number of months. After you write this formula, please do the cancellations. I have not shown that right now. I have shown it in the previous part of the video. You have to do the cancellations and the answer that you get is 500. So it is 500 which is called as interest on investment.
first effect of hidden adjustment on investment is interest on investment. Interest हमेशा प्लस होता है. The word itself, interest का मतलब है ज्यादा. Okay, so plus interest on investment, ये first effect है. After calculation we had got 500. Second effect, because this is a mental calculation, a mind calculation, we had to write it in profit and loss. यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है, सर डेबिट में लिखो कि क्रेडिट में लिखो. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी जेब में आता है, जाता नहीं है, आता है. therefore it is an income. the word income तो आप तोड़ोगे ना, income. okay, it's coming in. therefore it is an income. credit the incomes and gains. second effect by interest on investment is 500. टू हिडन एडजस्टमेंट्स आपने सॉल्व कर लिए है. अभी अब रूटीन एडजस्टमेंट्स जो है, मतलब जो विजिबल एडजस्टमेंट्स है, उसको हम कंटिन्यूसली सॉल्व करेंगे. द फर्स्ट वन इज स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st March. दिस इज क्लोजिंग स्टॉक बिकॉज 31st March इज द क्लोजिंग डेट. 65,000 के दो इफेक्ट. फर्स्ट तो ट्रेडिंग अकाउंट में है, यहाँ पे आपको कोई सर खुजाने की जरूरत नहीं है, इट इज द सेम. सो फर्स्ट इफेक्ट इज क्लोजिंग स्टॉक 65,000. सेकेंड, ये क्लोजिंग स्टॉक आपको तो फेंकना नहीं है, रख देना है, कल परसों तरसों काम आएगा. तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे सेकेंड इफेक्ट हमको लिखना है 65,000. इट्स अ वेरी सिंपल एडजस्टमेंट, हर क्वेश्चन में ये रिपीटेड होता है. मूविंग ऑन. सेकेंड, गुड्स. द फर्स्ट वर्ड इटसेल्फ सेज कि कहां पे आपको जाना है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट में जाना है. गुड्स का क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड बाय फायर. अगर कोई भी चीज को आग लग जाती है, व्हाट डू यू डू, रख तो नहीं सकते ना, कोई काम का तो नहीं है, फेंकना ही पड़ेगा. तो यू हैव टू थ्रो इट अवे. सो 12,000 का गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट में से क्रेडिट व्हाट गोज आउट बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 12,000. नाउ ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, यू मे क्राई अबाउट इट, थोड़ा रो दोगे, बट बाकी का ये 12,000 कोई आपको देने वाला नहीं है. therefore it is a total loss. So the second effect is in profit and loss account to loss by fire 12,000. Our third adjustment is Mr. Pluto. Now who is Mr. Pluto? Customer. Customer का मतलब क्या है, debtor. Understand that. तो ये debtor की बात कर रहे. क्या हो गया, कंगाल, insolvent. एंड ऑब्वियसली एक कंगाल आदमी को कंगाल क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके जेब में, बैंक में, घर में, कहां पर भी पैसा होता नहीं है. तो प्लूटो से ना आपको 3,000 मिलने नहीं वाला है, ये क्लियरली दिया है. कुड नॉट पे हिज डेब्ट्स. सो व्हाट डू यू डू, फ्रॉम डेटर्स 30,000 आप प्लूटो का नाम निकाल दो. यू कैन राइट माइनस प्लूटो. अकाउंटिंग जार्गन वर्ड्स क्या है, एडिशनल बैड डेब्ट. सो द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ दिस इज इन बैलेंस शीट. From debtors subtract additional bad debt 3,000. Second effect is profit and loss account. ये जो फॉर्मूला है ना additional bad debt, उसमें आप लिखोगे 3,000. Moving on. Immediately 4, ये जो 3 से कनेक्टेड है, create RDD. कौन सा RDD, create ना, create का मतलब मैंने कितनी बार कहा है, new, नया. So this is new RDD. Doubtful debt. DD का मतलब doubtful debt. आपको डाउट है डेटर्स पे 5% का. अभी क्या डाउट है कि वो भाग जाएगी, पैसा आपको देने वाले नहीं है, तो यू हैव टू सबट्रैक्ट, क्योंकि वो लोग बुरे लोग हैं, यू डोंट वांट टू हैव एनी कनेक्शन विद देम. सो बैलेंस शीट में से नाउ योर डेटर्स 30,000 माइनस 3,000 इज 27,000. तो ये डेटर्स है, इस पे आपको डाउट है 5% का. सो वो डाउट आप माइनस कर रहे हो, माइनस न्यू RDD 1,350. एंड द सेकेंड इफेक्ट इज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, new RDD 1,350. This is the second effect for that. Moving on with our adjustments. The fifth, very simple, it's there in almost all questions. Depreciate motor car by 4,000. Motor car is in the balance sheet. The word depreciation means subtraction. तो subtract कर लो. 4,000 आपको कैलकुलेट भी नहीं करना था क्योंकि रेडीमेड आंसर था. सिमिलरली मशीनरी का भी डेप्रीसिएशन कहा था वहीं पे, एंड मशीनरी बाय 2,000. सो मशीनरी में से माइनस कर लो 2,000. नाउ ये दोनों फर्स्ट इफेक्ट है. सेकेंड इफेक्ट कहां पे आता है, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. रीजन, इट इज अ कैलकुलेशन. इस सब में तो रेडीमेड था, बट नॉर्मली डेप्रीसिएशन इज अ कैलकुलेशन. सो टू डेप्रीसिएशन, मोटर का 4,000, मशीनरी 2,000.
Our sixth adjustment is provide interest on partners capital at 5%. First, let me give you the explanation about what is interest on partners capital. So you understand fully ये होता क्या है, इसको solve किस तरह करना है. Adjustment 6, which is interest on partners capital. How is that to be solved? First, let's understand what is interest on partners capital. Capital क्या होता है? मालिक का पैसा. वो पैसा मालिक बिजनेस में डालता है. ओके, कोई भी अपना पैसा कहां पर भी डाले, सबको, कोई भी दया धर्म नहीं कर रहा है. ओके, सबको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए. तो मालिक को अपने पैसे पे क्या एक्स्ट्रा चाहिए? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल. So that is what is interest on partners capital. Now how do you find it? Since partners invest in the business capital, they expect something extra in return, which is called as interest on capital. Whenever, everyone, all the students, when you're calculating interest, always remember interest का answer 8 formula में है, ART. Now there are two owners in this particular sum. एक तो माइक है, उसका कैपिटल कितना था और उस पे इंटरेस्ट कितना था. कैसे ढूंढेंगे? 8 फॉर्मूला. ART फुल फॉर्म अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम. हाउ मच इज द अमाउंट फॉर माइक? 60,000. रेट 5%. वो दोनों के लिए सेम है, दोनों पार्टनर्स. और टाइम बोला नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बोला नहीं है. जब बोला नहीं है तो फिर टाइम क्या होता है? 12 महीना, 12/12. So the answer when you do your maths will be 3,000. Very same calculation for Minu. For him also 8 formula. And amount for him is 60,000. Even the rate is same and the time is same. So the answer also is same, 3,000. First effect of interest on partners capital, ये उनके लिए इनकम है, क्रेडिट. 60,000 उनका कैपिटल है ना, तो इनकम है. So on the credit side by interest on capital 3,000 and second effect, see this is credit, तो second effect debit में होना चाहिए. So profit and loss, because it is a calculation, it is a mind work. So debit side पे to interest on capital, Mike 3,000, Minu 3,000. ये हो गए दो इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के. क्वेश्चन में नजर मार लो. 7th पॉइंट से पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इन देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल. 60,000 को कैंसिल करोगे, सो यू गेट 1:1. दिस इज ओनली इंफॉर्मेशन, कुछ करना नहीं है. लेटर ऑन जब आपको नेट प्रॉफिट आएगा तो ये 1:1, हाफ एंड हाफ आपको काम आएगा. नाउ दैट यू हैव डन all the 7 points as well as the 2 hidden adjustments, we can go to our steps and say that solve adjustment step 3 is over. Now we have reached step 4, which would be tally the accounts and balance sheet. For that students पक्का कर लीजिए कि जो भी आपने इनर कॉलम में लिखा है वो इनर कॉलम से आपने आउटर कॉलम में ट्रांसफर कर लिया है. Always remember inner column numbers आर ओनली रफ वर्क, सो टू से ना, ये दिखावा है. जब बाहर थोड़ा शोशा करोगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे. तो जो मैथ्स है, प्लस है, माइनस है, वो कर लीजिए और आंसर्स को आप बाहर ट्रांसफर कर लीजिए. थोड़ा केयरफुल रहिए बिकॉज यू आर डूइंग मैथ्स. अगर यहाँ पे गलती होता है देन उसके बाद जो टाइम आप इसको देते हो अनफॉर्चुनेटली वो रॉन्ग रहता है. सो बी अ बिट केयरफुल. ओके, थोड़े ध्यान से 2 टाइम्स, 2 बार सोच लीजिए व्हाट प्लस एंड माइनस you have done. Okay, so very quickly we'll just do that. Inner column numbers, inner column mathematics will transfer to the outer column. So we'll start with purchases. The outer column is 1,40,000 minus 2,000, 1,38,000. On the credit side it is sales, 3 lakh minus 2,000, 2,98,000. In profit and loss account there are multiple calculations. आराम से, कोई जल्दी नहीं है. Insurance minus prepaid insurance, which is 4,000 minus 3,000, 1,000. Bad debt formula हमेशा थोड़ा खास होता है, इसमें हमने ज्यादा मेहनत की है. ओके, एडिशनल बैड डेट, एक्चुअली ये भी सेकेंड इफेक्ट है, आपको दिख नहीं रहा है, बट दिस इज सेकेंड इफेक्ट. यू डू 5,000 plus 3,000 plus 1,350 minus 2,000 and shift it outside. It will be 7,350. ओके, नेक्स्ट इज डेप्रीसिएशन. जब कोई साइन नहीं है
सिंपल सी बात है, एडिशन होता है. सो 4000 प्लस 2000 is 6000, and for interest on capital 3000 plus 3000 is also 6000. मैथ्स बहुत सिंपल है, बट एग्जाम के हड़बड़ी में, टेंशन में, इवन जो 30 मार्क का बच्चे होते हैं वो मिस्टेक करते हैं. सो गिव इट अ टाइम, 1 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, बट गेट दी प्लस एंड माइनस परफेक्ट. ओके, इसमें कोई 19-20 नहीं होता है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई प्लस माइनस नहीं है. We'll come back to this later on in the balance sheet. On the liability side, we don't have any additions or subtractions, but on the asset side, we do. Machinery minus depreciation is 12,000 minus 2,000. Outer column 10,000. Motor car 24,000 minus 4,000. Outer column 20,000. Sundry debtors, यहाँ पे many people silly mistake करते हैं. What is that? 30,000 माइनस 3 बाहर लिख देते हैं. प्लीज नोट, बाहर लिखना नहीं है, नीचे लिखना है, पहले से है 27,000 माइनस न्यू आरडीडी 1350 इन द आउटर कॉलम 25,650. ऑलवेज जहां पे ना 2-3 एडजस्टमेंट होते हैं और आंसर बाहर जाता है, दैट गिव्स यू मोर मार्क्स. सो बी अ बिट मोर केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग अ नंबर व्हिच कम्स आफ्टर मल्टीपल एडजस्टमेंट्स. इन्वेस्टमेंट ऊपर क्या है ना, माइनस 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 माइनस, तो माइनस का कीड़ा लग जाता है बच्चों को, और इन्वेस्टमेंट को भी उसके बाद माइनस कर देते हैं. नोटिस द साइन, इट इज एन एडिशन. इंटरेस्ट प्लस होता है, इंटरेस्ट कभी भी माइनस होता नहीं है. आप किसी को भी पूछ लो, आप किसी दोस्त को बोलोगे, देख मैं तो ना उसमें थोड़ा इंटरेस्टेड हूं, उसका मतलब क्या है, आपको उसके बारे में सरनेम जानना है, नाम पता जानना है. ओके, यू वांट टू नो मोर, नॉट लेस. ओके, सो वो प्लस होता है हमेशा. सो 10,000 प्लस 500, आउटर कॉलम गिव्स यू 10,500. सो इनर कॉलम का बाहर हो चुका है. अभी हम लोग जो टैली है वो स्टार्ट कर सकते हैं. सो वी स्टार्ट विथ ट्रेडिंग अकाउंट. व्हाट इज द नॉर्मल रिवाज ऑफ टैलिंग प्रोसेस? क्या है? डेबिट का टोटल लिख लो, क्रेडिट का टोटल लिख लो. ओके, है रेपिटेटिव बट फॉलो करो, सो दैट योर आंसर कंफर्म्ड इज करेक्ट. व्हाटएवर आई राइट इन द येलोड कलर्ड सेल, please note, is always a rough work. Okay, so let's start the tally process. Debit total is 1,63,000. Credit total is 3,75,000. सिंपल सी बात है, लॉन्ग टाइम बैक आपको किसी ना किसी ने तो पढ़ाई आया होगा, ग्रेटर देन, लेस देन. सो क्रेडिट इज ग्रेटर एंड डेबिट इज लेसर. तो जिसका पलड़ा भारी होता है, इलेक्शंस में भी जिसको वोट ज्यादा मिलता है, उसी का हुक्म चलता है. तो उसी तरह यहाँ पर क्रेडिट भारी है तो क्रेडिट ही सत्ते में बैठने वाला है. ओके, उसी का गवर्नमेंट बनने वाला है. तो क्रेडिट में भी वो लिखना 3,75,000, डेबिट में वो लिखना 3,75,000. ऑब्वियसली एक डिफरेंस आएगा जो डेबिट साइड पे आएगा. सो लेट्स सर्च दैट. सब्ट्रैक्शन करना है, यू कैन ऑलवेज डू दैट इन द रफ वर्क. कैलकुलेटर मत यूज करना, एंड्रॉइड मत यूज करना, आईओएस मत यूज करना. ओके, या तो पीसी का कैलसी भी मत यूज करना. सो अपना दिमाग यूज करना. वैसे भी वो थोड़ा थोड़ा रस्ट हो रहा है, काफी टाइम से आप लोग आराम कर रहे हो. ओके, सो यूज कर लो, यू विल गेट द परफेक्ट आंसर विच इज 2,12,000. इसका नाम क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट. चेंज होता नहीं है, इट इज द सेम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. कैरी इट डाउन. वेयर डू यू कैरी इट? to the next account, which is profit and loss account, credit side. You can write it wherever you want to, but it is a good thing if you write it in the first line. So it is by gross profit brought down 2,12,000. Now सेम प्रोसेस, डेबिट टोटल लिख लो, क्रेडिट टोटल लिख लो. वही रामायण में दोहरा रहा हूं, यहाँ पे कोई कैरेक्टर्स चेंज नहीं हो रहे हैं, तो ढूंढ लो. सो द डेबिट टोटल इज 52,850. द क्रेडिट टोटल इज 2,21,500. अगेन क्रेडिट का पलड़ा भारी है, वो दोनों साइड पे आ जाएगा. सो 221,500, डेबिट 221,500. Difference between both these numbers is 1,68,650. What is this called? Net प्रॉफिट. ये नेट प्रॉफिट का बंटवारा होगा. हमेशा जब भी 2 या 3 हिस्सेदार होते हैं, बंटवारा होता है, तो ये बंटवारा होगा पार्टनर्स के बीच में. तो नेट प्रॉफिट पहले हम लिख लेते हैं. एंड द नेम्स इज माइक एंड मीनू. माइक का कितना हिस्सा है? हिस्सा हमने पहले ही समझ लिया है, हाफ एंड हाफ. सो वो हम लोग यूज करेंगे. सो 168,650 का हाफ comes to 84,325. Similar calculation for Minu.
it will also be 84,325. both these numbers, यहाँ पे 2 है ना, आप कहां पर लेके जाओगे, partners capital, because it belongs to the partners. Okay, so let's take it to the partners capital account on the buy side, ये credit side पे by net profit brought down, माइक को उसका हिस्सा दे दो, मीनू को उसका हिस्सा दे दो. नाउ यहाँ पे टोटलिंग करेंगे. डेबिट क्रेडिट एक्चुअली बहुत सिंपल है, 2000 वो मैं भी बोल सकता हूं और आपको भी दिखता है, बट स्टिल रिवाज. ओके, वी जस्ट कंटिन्यूइंग कि दिस इज द प्रोसेस दैट वी डू, हम लोग लिख लेते हैं. सो डेबिट इज 2000 फॉर माइक, क्रेडिट 147,325, मीनू 2000, क्रेडिट 147,325, वेरी सेम नंबर्स, एकदम सेम है. तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ना वो भी सेम होगा. माइक के लिए हैवी क्या है, ओके, क्रेडिट 147,325. सो ऑन द डेबिट साइड ऑल्सो यू राइट द सेम 147,325. डिफरेंस यहां पर आएगा. ओके, लेट्स सी द डिफरेंस 145,325. सेम प्रोसेस, वही रास्ता लेना है मीनू के लिए भी. क्रेडिट साइड पे आया 147,325 डेबिट एंड देन द डिफरेंस 145,325. सेम नंबर्स ना, बिकॉज ऑल द नंबर्स रिमेन द सेम. व्हाट इज दिस? दिस इज कैपिटल, बट विच कैपिटल? ये एंड का कैपिटल है, इसको कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल. ऑफिशियली इसको कहते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन. क्लोजिंग कैपिटल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, अगर आप इसको ना लिखो तो चलेगा, नो प्रॉब्लम्स. नाउ ये है डेबिट, वेयर विल इट गो? क्रेडिट. बैलेंस शीट में बैलेंस कहा ना, बैलेंस, तो इट विल गो टू बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में क्रेडिट कहां पे होता है? लाइबिलिटी साइड. ओके, सो लेट्स राइट इट ऑन द लाइबिलिटी साइड. दिस इज इट. कैपिटल्स माइक 145,325 एंड मीनू 145,325. आउटर कॉलम में इसका टोटल पुश कर दीजिए, विच इज 290,650. एंड द वेरी एंड, ओके, लास्ट बॉल पे हमको छक्का मारना है अगर इसका टोटलिंग सही से हो जाए. सो द टोटलिंग इज फॉर द लाइबिलिटी साइड 384,150. जितना प्रार्थना करना है कर लो, क्योंकि ये एसेट में भी उतना ही आना चाहिए. बहुत से बच्चे हैं, मेनी स्टूडेंट्स दे डोंट डू, वो यही लेके कॉपी कर लेते हैं ऑन द एसेट साइड. उसके बाद प्रेयर करते हैं एग्जामिनेशन हॉल के बाद कि सही रहा होगा. प्लीज 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लेना और अमाउंट का, एसेट साइड की अमाउंट का टोटल आप कर लेना. यस, इट शुड कम द सेम. ओके, आपकी मेहनत रंग लाएगी अगर ये सेम आ गया. सो आवर आंसर इज 384,150, which is the same. Congratulations as usual to you and me. Last step क्या था? Tally the accounts and balance sheet. We have successfully completed this step. Here's hoping your solution was perfectly fine. I do have a big smile on my face. It's not necessary that many of you will. अगर कुछ गलती आपने कर दी होगी, प्लीज नोट, गलती करना कोई पाप नहीं है. एज अ स्टूडेंट आप गलती करोगे. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आप इंप्रूव करो. यू इंप्रूव अपॉन दैट पर्टिकुलर मिस्टेक द नेक्स्ट टाइम दैट सेम थिंग इज रिपीटेड. ओके, इट विल नॉट बी दैट इन एवरी वीडियो वेयर आई एम टीचिंग समथिंग न्यू वो एक ही बार होगा. वो एडजस्टमेंट जो है ना, वो कोई स्पेशल अपीयरेंस या गेस्ट अपीयरेंस नहीं है कि एक सम में आया उसके बाद आना बिल्कुल बंद हो गया. एब्सोल्युटली नॉट. वी फॉलो अ ट्रेंड. मैं वही चीज को एडजस्टमेंट होगा, हिडन एडजस्टमेंट होगा, मैं रिपीट करूंगा. सो इफ देयर इज एनी मिस्टेक ऑन योर पार्ट, दैट्स परफेक्टली फाइन. डोंट वरी अबाउट इट. यू विल, इट्स माय गारंटी, you will improve upon them. You will become better and better and better as and when this video series goes ahead. Don't give up hope. We have ample amount of time for the practice to continue. Okay, we will continue to be meeting regularly. Do take care of yourself. Also, before I move on, we have to constantly remind you about the upload of the video. But yes, if you subscribe to the channel and there is a cute looking bell icon, आप वो बेल आइकन दबा दोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपको इंटीमेशन है कि यहाँ पर वीडियो अपलोड हुआ है पता चल जाएगा. अपना ख्याल रखना. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. हैव अ गुड टाइम. बाय.